Okay, let us discuss about the first case regarding speech. Now, just look into this case and tell me what exactly is this. Which area of the brain is affected? Which area of the brain related to speech is get affected? In this case, patient is able to read and hear very well. ठीक है, ये केस है. Patient is able to read and patient is also able to hear very well. He can get the meaning what he see and hear. जो वो देख रहा है उसका मीनिंग भी उसको समझ में आ रहा है, जो सुन रहा है उसका भी मीनिंग उसको समझ में आ रहा है. Patient also knows that what to say and what not to say when certain questions are asked. Okay, but he cannot get the words to say. He knows everything, but कौन सा word कब use करना है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, और words नहीं आ रहा है, और no words will come out, और at times only few words will come with very difficulty. At times only few words will come with very difficulty. In other words to say, he cannot express what he is intended to say. And there is also some problem related to repetition. अगर कुछ भी चीज़ को रिपीट करने के लिए आप बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, उसको जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पा रहा है. सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टेल मी वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज. You say it is Broca's area. Arcuate fibers, okay. Yes. Okay, let us look into the case. As per the history, the visual pathway, auditory pathway and Wernicke's areas are absolutely okay. ठीक है, विजुअल पाथवे है, ऑडिटरी पाथवे है, और वो वर्निक्स एरिया है, is absolutely okay. Why? Because he is able to understand what you are asking. He is also able to understand what he is seeing. ठीक है, so अगर वो समझ रहा है कि वो क्या है, क्या सुन रहा है, तो इसका मतलब है उसका वर्निक्स एरिया सही है, मेंटल डिक्शनरी उसका सही है. Okay, so as a clear-cut image or idea is formed regarding what he want to say. But when this idea is carried to the Broca's area, the appropriate motor programs will not be released from the Broca's area. Okay, from the Wernicke's area it is carried to the Broca's area, but when it reaches the Broca's area, in the Broca's area, जो वर्ड उसको बोलना चाहिए, उस बोलने के लिए जो प्रोग्राम्स रिलीज होना है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो रिलीज होना है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है. ओके, बट व्हेन दिस idea is carried to the Broca's area, the appropriate motor programs will not be released from the Broca's area. So in this case there will be damage to the Broca's area. There may be some damage, there may be some compression या जो भी हो सकता है वहाँ पे. Surrounding nearby arcuate fibers connected to the Broca's area is also get affected. So there will be loss of repetition. For example, we connect सराउंडिंग एरिया, जो ब्रोकास एरिया का जो सराउंडिंग एरिया है. ओके, सो दिस इज आर्कुएट फाइबर्स. ब्रोकास एरिया इज गेट अफेक्टेड, एंड अलोंग विद दैट सम ऑफ द फाइबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर arcuate fibers, middle arcuate fibers are also get affected. So this patient has got two problems now. What is one? He is not able to express what he want to say. Number one. Number two is, as some of the fibers which are present over here nearby, जब ये डैमेज हो गया तो इसका पास में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, ये भी डैमेज होगा. आर्कुएट फाइबर भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है. सो देयरफॉर ही विल हैव द प्रॉब्लम विद द रिपीटिशन. आप जो बोल रहे हैं उसको वो रिपीट नहीं कर पाएगा. ओके, सी देयर आर टू थिंग्स. नाउ आप उसने कुछ देखा और उसको एक्सप्रेस करना है, वो तो नहीं हो रहा है ना, ब्रोकास एरिया डैमेज है. बट उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने जो बोला उसी को रिपीट करना है. अब यहाँ पे तो क्या है कि पहले वाला सिचुएशन से ये अलग है. पहले वाला सिचुएशन में क्या है कि उसको खुद सोचना है और खुद बोलना है.
अब जब मैं बोलता हूँ मेरा नाम श्रीनिधि है, रिपीट करो, उसको तो सिर्फ इतना ही बोला ना, मेरा नाम श्रीनिधि है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट एज सम ऑफ द फाइबर्स ऑफ द आर्कुएट फाइबर्स आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, सो देर विल बी ऑल्सो सम लॉस ऑफ रिपीटिशन, जैसे इस पेशेंट में. ओके, so now surrounding nearby arcuate fibers are all connected to the Broca's area is also get affected, so there will be loss of some repetition. What is the main function of these arcuate fibers? Arcuate fibers are responsible for repetition. अगर मैं कुछ बोलता हूँ उसको आप वापस बोलना है तो वहाँ पे arcuate fibers काम में आते हैं. ठीक है, जैसे Broca's area is a motor area, Wernicke's area is a sensory area. Arcuate fibers are meant for repetition. ठीक है, छोटा बच्चे जो है वो बहुत अच्छा रिपीटिशन करते हैं, राइमिंग्स का, इसका उसका सब. ठीक है, तो उसका मतलब उसका जो आर्क्यूट फाइबर्स है ना वो बहुत अच्छा डेवलप होता है कंपेयर टू वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकास एरिया, रिपीटिशन जिसका अच्छा है. ओके, सो एनीवे, सो दिस इज वन पार्ट. सो व्हाट यू कॉल दिस कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? दिस इज कॉल्ड एज ब्रोकास एफेसी. There is loss of speech. Loss of speech is because of the problem in the Broca's area. So this is also called as motor aphasia because Broca's area is a motor center. Therefore, it is also called as motor aphasia. Okay. This is also called as non-fluent aphasia. इसका दूसरा नाम है. Fluently वो चीज़ों को नहीं बोल पा रहा. Non-fluent aphasia. Or it is also called as non-expressive aphasia. Expression नहीं कर पा रहा. पता है उसको क्या बोलना है बट उसको बोल नहीं पा रहा. और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूट एफेसिया. ये सब एक ही नाम है सब. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूट एफेसिया. ठीक है, मोटर एफेसिया, नॉन एक्सप्रेसिव एफेसिया एक्सेट्रा. पेशेंट नो व्हाट ही हैज़ टू से, उसको पता है कि क्या बोलना है बट वो बोल नहीं पा रहा. ओके, सो एक एग्जाम्पल दिया है कि दिस इज जस्ट लाइक ए हस्बैंड नो व्हाट टू टॉक and he also know what is good, what is bad, सब पता है. but wife never give him a chance to talk. वाइफ जो है उसको कोई चांस ही नहीं दे रहे. वो तो वाइफ जो है अपना ही ओपिनियन बोल रहे हैं, यही करना है, बट हस्बैंड को पता है ये करने से खराबी होगा, बट उसको जो है बोलने का मौका नहीं है, वो बोल नहीं पाएगा. सो दिस इज दैट सिचुएशन. ठीक है, ब्रोकास एफेसिया. सो दिस इज द फर्स्ट केस. ऑफ कोर्स आप लोगों को शायद ये पता होगा, सिंपल है. Now we go to the next one. Yes, look at this case. Huh? नहीं आ रहा है क्या? इसमें प्रॉब्लम होगा शायद कनेक्शन में. अभी इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है? ब्रोकास में है, वर्निक्स में है, आर्क्यूट फाइबर्स में, किसमें? फाइबर में, आर्क्यूट फाइबर्स. शुरू से होगा पूरा. बंदी कर दो. नहीं, वो तो एक बार बंदी करना पड़ेगा. Okay, yes, this is case number 2. Now look at this case. In this case, patient talks a lot, बहुत ज़्यादा बात करता है, and total process of talking is okay. जो वो बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट ऑल सही है. ठीक है,
बात करने का जो प्रक्रिया है वो सही है, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉक्स, नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग। क्या वो सिचुएशन के लिए रिलेवेंट है, नॉन रिलेवेंट है, पता नहीं, वो कुछ बोल रहे हैं बस। ओके, ही और शी सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स टू डिनोट द थिंग्स, ऑल्सो सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स। जैसे ये है चॉक पीस है, चॉक पीस के लिए वो बोल रहे हैं डस्टर है, ठीक है, माने अप्रोप्रिएट टू द मीनिंग नहीं है। ओके, शी सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स टू डिनोट द थिंग्स बट वॉन्ट टू टॉक मोर देन द नॉर्मल। बट वो बात करना चाहता है, बात करता रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी बात करता है। मीन टाइम शी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स टॉक। अब इसके साथ क्या दिक्कत है कि बाकी लोग क्या बात करते हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद बात कर रहा है और वो हमें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो बात है वो सिचुएशन के रिलेवेंट नहीं है। बट शी इज टॉकिंग, ओके, इवन शी ऑल्सो डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, उसको भी नहीं पता है। नाउ शी कैनॉट रिपीट व्हाट ही टॉक्ड बिफोर, एक बार उसने जो बात किया है उसको वो रिपीट नहीं कर सकती है, बट लगातार बात कर रही है, इररिलेवेंट है, मीनिंगलेस है। Now there will be inability to speak spontaneously and inability to form the words and name the objects. बात तो कर रहे हो बट स्पॉन्टेनियसली बात नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, सडनली एक चीज़ को देख के अगर आपने पूछा ये क्या है तो वो बात नहीं करेगी, उससे नहीं हो पाएगी। मतलब आप जो बोल रहे हो वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद बात कर रहा है, ठीक है, वो खुद जो बात कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है और उसको भी नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट वो बात कर रहा है, ठीक है। एंड देयर विल बी एक्सेस जॉर्गन स्पीच एंड सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जॉर्गन स्पीच क्या होता है? रिपीटिशन है, हाँ, जॉर्गन स्पीच एंड सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ओके। एंड देयर विल बी इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड नेमिंग। अगर आप बोलेंगे ना कि आप जो बोल रहे हो तो उसको लिखो, लिख नहीं पाएगी वो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप बोलो, वो बोल नहीं पाएगी। ये क्या है, बोल नहीं पाएगी, बट वो बात कर रही है अपने आप। व्हाट इज दिस कंडीशन? वर्निक्स है, वाई? नहीं, कोई एक बोलो अच्छे से, गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। हाँ, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उसका वर्निक्स नहीं चल रहा है, मेंटल डिस्टर्ब उसका ठीक नहीं है, ठीक है। बट उसका खुद का जो ब्रोकास एरिया है वो सही है, बट वो ब्रोकास एरिया क्या कर रहा है, कोई भी स्टिमुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ब्रोकास एरिया अपने आप काम कर रहा है। ब्रोकास एरिया इज वर्किंग बाय इट्स ओन। यूजुअली हम लोगों में क्या होता है कि हमारा ब्रोकास एरिया वर्निक्स एरिया से जो स्टिमुलेशन आता है उस हिसाब से काम करता है। जब वर्निक्स एरिया से कोई आता ही नहीं है मैसेज, ब्रोकास एरिया क्या करता है, वेट करके वो भी थक जाता है, उसके बाद खुद बोलना शुरू कर देता है। बिकॉज ब्रोकास एरिया इज नॉर्मल, बट इनपुट टू द ब्रोकास एरिया इज नॉट कमिंग। सो व्हेन देयर इज नो इनपुट, देन व्हाट हैपन्स कि ब्रोकास एरिया जो है खुद अपने हिसाब से कुछ करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक ए पेशेंट ऑफ ऑटिज्म, ए पेशेंट ऑफ ऑटिज्म he has to respond for the external stimuli, sensory stimuli, बट उसका सेंसरी ब्लॉक है, सेंसेशंस अंदर नहीं जा रहा है। तो बॉडी का मोटर सेंटर्स क्या करेगा, उसका ब्रेन के अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, तो मोटर सेंटर अपने आप कुछ करना शुरू करेगा। देयरफॉर ऑटिज्म का जो पेशेंट है वो अपना ही दुनिया में रहता है, इज डिस्कनेक्टेड विद अदर्स। हमारा सेंटेंस के लिए वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट खुद वो कूद रहा है, खुद वो कुछ बात कर रहा है, दैट इज पॉसिबल, okay, which is meaningless. So now here in this case motor part of the language is okay and she is talking, but she is talking irrelevant and there is no meaning in her talk, and even she herself cannot understand what others talk. वो खुद जो बात करते वो भी पता नहीं है उसको, बाकी लोग भी जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं पता है। The mental dictionary which does not
which does the function of comprehension, Wernicke's area, comprehension of the visual and auditory pathway is get damaged. Okay, समझ में आ रहा है? ब्रोकास एरिया अपने आप क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको कोई स्टिमुलेशन नहीं आ रहा इधर से, इसलिए वो अपने आप काम कर रहा है. वहाँ से कोई स्टिमुलेशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वर्निक्स एरिया डैमेज है. वर्निक्स एरिया इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब. सो डिकोडिंग प्रोसेस इज डैमेज्ड. व्हाट आई मीन टू से, डिकोडिंग, आपने जो देखा, आपने जो सुना, उसको अंदर जाके जो डिकोडिंग होना है वर्निक्स एरिया में, वो हो ही नहीं रहा है. ठीक है, उधर वो ब्रोकास एरिया वेट कर रहा है, अभी आएगा सेंसेशन, अभी आएगा, कोई सेंसेशन आ ही नहीं रहा है. तो उसके बाद वो उसको लगता है, वो उसको जो लगता है वो खुद का करना शुरू कर देता है. ओके, सो सराउंडिंग नियर बाई आर्कुएट ट्रैक्ट इज ऑल्सो डैमेज. यहाँ पे भी सेम हो सकता है जैसा वो वाला केस में हुआ. जो सराउंडिंग एरिया है, जब वर्निक्स एरिया डैमेज हो गया, उसका साथ में जो है आर्कुएट फाइबर्स है, वो भी थोड़ा डैमेज हो सकता है. सो रिपीटिशन यहाँ पे भी लॉस होता है. देयर विल बी लॉस ऑफ रिपीटिशन टू सम एक्सटेंट. Okay, so this case is called as a Wernicke's aphasia. This is a case of Wernicke's aphasia. So this is also called as repetitive aphasia, expressive aphasia, fluent aphasia. वो तो नॉन फ्लुएंट था. वो ब्रोकास एरिया में जो डैमेज हुआ वो नॉन फ्लुएंट था, बोल नहीं पा रहा था. तो यहाँ पे इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बोल रहा है आराम से, क्योंकि ब्रोकास एरिया नॉर्मल है. फ्लुएंट एफेसिया है. एक्सप्रेस तो कर रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बस एक्सप्रेस तो कर रहा है. ठीक है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. कोई भी चीज़ को, मीनिंग को समझ के उसके बाद एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है. ओके, सो व्हेन दिस पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इंजुरी, मे बी आफ्टर द स्ट्रोक एक्सेट्रा, शी विल टॉक एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड एंड टॉक मेनी नॉनसेंस थिंग्स. यूजुअली ये जो होता है बड़ा पेशेंट में होता है, तो स्ट्रोक के बाद होता है. ठीक है, स्ट्रोक के टाइम में ऐसी इंसिडेंट होता है. नाउ इफ़ यू शो द पेन, शी विल से दैट इज एलिफेंट. पेन को दिखाया तो वो बोलेगा कि ये तो हाथी है, क्योंकि उसका मेंटल डिक्शनरी काम नहीं कर रहा. ओके, एंड देयर विल बी जॉर्गन स्पीच, एंड जॉर्गन स्पीच मीन्स इज ए न्यू लैंग्वेज दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड. ये ऐसे लैंग्वेज है, छोटा बच्चे करते हैं ना 4-5 महीने में, वो बात करने के लिए कोशिश करते हैं, बोलते रहते हैं, कोई समझ में नहीं आएगा किसी को भी. यूजुअली किड्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द इन्फेंसी डेवलप दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, सो स्पीच को जब वो लर्न करना शुरू करता है तो उस टाइम में इस टाइप का स्पीच आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज वर्निक्स एफेसिया. ओके, सो दिस इज लाइक जस्ट शादी का 20 साल के बाद जो होता है वो ये. दिस इज जस्ट लाइक अ वाइफ आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज, शी ओनली टॉक. ओके, husband remain mute and she talk many irrelevant things. Even she don't know what she is actually talking. ये मेरा एग्जाम्पल नहीं, बुक में एग्जाम्पल था ये. एंड अदर्स विल नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड. तो पहले वाले में क्या है, मोटर एफेसिया है, हस्बैंड को सब कुछ पता है बेचारा, फिर भी वो जो चुप बैठा है, कोई फ़ायदा नहीं है बात करके. ठीक है, दूसरा केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ओनली वाइफ इज टॉकिंग. ठीक है, हस्बैंड यहाँ पे भी चुप है, और वाइफ को जो बात कर रही है उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या बात कर रही है. ठीक है, फिर भी वो बात कर रही है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. जस्ट फॉर आपको याद रखने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, आप सब अच्छे लोग हैं. यस, गो टू दिस केस नंबर 3. पेशेंट इज 8 year old. सो 2 चीज़ क्लियर हो गया. ओके, सो यूजुअली वी विल गेट ए वर्निक्स एफेसिया लाइक कंडीशन इन केस ऑफ ऑटिज्म. ऑटिज्म में जो मिलता है वो एक वर्निक्स एफेसिया लाइक कंडीशन है, बच्चा अपने आप बात करता है. ठीक है, ऑफ कोर्स ऑटिज्म में बाकी भी एक्शन भी है, बट एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, चाइल्ड इज टॉकिंग बाय हिमसेल्फ. नाउ ए पेशेंट इज 8 year old boy who can talk well and also will understand the things and get the meaning of it. अभी थोड़ा केसेस चेंज होता है. who can talk very well and also he can understand the things and get the meaning of it also. उसका मीनिंग भी उसको समझ में आ रहा है. टॉकिंग इज रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल. जो वो बात कर रहे हैं वो भी मीनिंगफुल है, रिलेवेंट है. ही यूज्ड टू रीड द पोयम, बट इफ यू टोल्ड टू रिपीट, ही कैन नॉट रिपीट इट.
द थिंग्स विच इज रिसाइटेड और इससे पहले जो उसने जो बताया तो उसको रिपीट करने के लिए आप बोलेंगे तो रिपीट तो नहीं कर पाएगा, अदरवाइज वो अपने आप पढ़ लेगा, अपने आप सुनेगा, सब कुछ करेगा। बट अभी मैंने क्या बोला, स्टोरी टेलिंग फॉर एग्जाम्पल, 2 लाइन का स्टोरी आपने बोल दिया कि इसको रिपीट करो या कोई राइम्स को रिपीट करो, नॉट पॉसिबल। When he is asked to count from 1 to 10, he will do it with many mistakes. जब उसको काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे 1 से 10 तक, वो करेगा बट बहुत सारे मिस्टेक्स करेगा। 1, 4, 2, 3, 7, 10, 9 इस तरीके से आएगा, ठीक है। ही विल डू मेनी मिस्टेक्स एंड विच ही अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू करेक्ट इट ऑल्सो। उसको कुछ समझ में आता है कि हाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, वो कुछ समझ में उसको सही करेगा। व्हेन वी से 97, जब आप बोलेंगे कि 97, ही से 79, आप उसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं 97, ही विल से इट एज 79। और 70 साइन, 9 नहीं बोलेगा, 70 साइन बोलेगा। और 79 बोलेगा, he will say 79. All the other mental faculties are normal. All the other mental faculties are normal. For example, एक रेफ्रिजरेटर वर्ड है, रेफ्रिजरेटर वर्ड को उसको बोलने के लिए आप बोलेंगे, रिपीट करने के लिए, वो रेफ्रिजरेटर नहीं बोलेगा, या तो उसको रेगुलेटर बोलेगा या तो फ्रिज रिफ्रिजरेटर बोलेगा। जैसे 79 को 97, 79 ऐसा बोलेगा ना। सो दिस इज द केस, अदरवाइज सब कुछ सही है उसको, ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल, ही कैन टॉक द थिंग्स वेल, बट व्हेन यू टेल हिम टू रिपीट सम ऑफ द थिंग्स, ही विल हैव दिस प्रॉब्लम। सिर्फ आर्कुएट फाइबर्स है। ओके, एज वी हैव सीन दिस patient is talking well and also meaningful and also relevant. His Wernicke's and Broca's area is normal. सही है, इस पेशेंट में Wernicke's area और Broca's area नॉर्मल है, क्योंकि अच्छे से बोल भी रहा था, वो ये कर रहा था। बट he has got problem in the repetition of once uttered phrases or words. So this is because of the lesion in the arcuate fasciculus or arcuate fibers. Okay, arcuate fibers pathway connect in these two centers. क्यों ये प्रॉब्लम होता है? Lesion of this pathway makes the Wernicke's and the Broca's areas as 2 independent areas which work normally. So whenever there is a problem in the arcuate fibers, मान लो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट में क्या हुआ, Wernicke's भी सही है और Broca's भी सही है। उस आर्कुएट फाइबर में जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो दोनों सेंटर जो है डिस्कनेक्टेड हो गए। एक्चुअली दोनों सेंटर्स नॉर्मल है, दोनों सेंटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, बट आर्कुएट फाइबर की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, वो दोनों सेंटर अलग अलग हो गए, अब कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। ओके, सो दे वर्क नाउ इंडिपेंडेंटली, नाउ दे स्टार्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली। एनीवे, देयर सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द लीजन। आर्कुएट फाइबर में लीजन जब मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आर्कुएट फाइबर कट हो गया, हो सकता है कि थोड़ा 50% आर्कुएट फाइबर चला गया, 50% अभी भी चल रहा है। हो सकता है ओनली 10% इज प्रॉब्लमेटिक, 90% इज नॉर्मल। हो सकता है कि संपूर्ण गया है, ठीक है। सो इसका जो सीवियरिटी है डिपेंड्स अपॉन द लीजन का सीवियरिटी को। ओके, नाउ ए माइल्ड टू मॉडरेट लीजन, सपोज कुछ फाइबर्स गया, मैक्सिमम फाइबर्स सही है या 50% फाइबर्स सही है। ए माइल्ड टू मॉडरेट लीजन मीन्स 2 centers are connected and sensory input is converted into the motor input with the meaningful words, but repetition will be difficult. So why the repetition will be difficult? Because all the fibers are not healthy. कुछ फाइबर्स डैमेज है, इसकी वजह से क्या है कि ये दोनों सेंटर्स आपस में कनेक्टेड होता है और उसको पता भी है क्या बोलना, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ फाइबर्स डैमेज होने की वजह से सिर्फ रिपीटेशन में उसको प्रॉब्लम आता है, नॉट इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, नॉट इन टेलिंग। जब रिपीटेशन करने के लिए आप बोलेंगे तभी इसको प्रॉब्लम आएगा, वो भी क्या है, लीजन के ऊपर डिपेंड है। फ्यू चिल्ड्रन विल फेस प्रॉब्लम इन रिसाइटेशन ऑफ द पोएम। जब आप
छोटा बच्चे आते हैं, कुछ बच्चों को जो है राइम्स बोलने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। वो ऐसी इसको पढ़ने के लिए बोलो तो पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, राइम्स को रिपीट करने में उसको दिक्कत होता है, ओके। और ऑलरेडी थॉट लेसन्स, कुछ लेसन्स को वो पढ़ लिया, उसको समझ में भी आ गया, सब कुछ आ गया, बट उसे बोलेंगे क्या पढ़ा तुमने, बोल नहीं पाएगी, ओके। So or repetition may be due to defect in the arcuate fasciculus. Okay, so this is the problem in this case, and we know that this is nothing but the problem is related to the repetition, and this is due to the pathology of the arcuate fibers, and this type of aphasia is called as conductive aphasia. This is called as conductive aphasia. Only there is a conduction में problem है, motor sensory कोई problem नहीं है, सिर्फ conduction में problem है. So this is called as conductive aphasia. ओके, नाउ बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेगा ओपीडी में भी जो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। सीपी का पेशेंट भी हो सकता है या बाकी भी जो भी पेशेंट है, ऑटिज्म का पेशेंट है रिपीट नहीं कर पा रहे, एडीएचडी का पेशेंट है रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, आर्कुएट फाइबर्स में। आर्कुएट फाइबर्स में जो है मे बी सम ऑफ द फाइबर्स में बी डैमेज and some of the fibers are intact, but some of the fibers are damaged, and that may lead to this problem. Yes, now go to the next case, case number 4. Yes, read this case and tell me what is this. यस, समझ में आ रहा है कुछ? Patient has reduced output of the speech significantly with the good auditory comprehension. अब जो बोल रहा है वो सब समझ में आ रहा है, उसको मीनिंग भी समझ में आ रहा है, बट बोलने में इसको प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट प्रॉब्लम है, बट जितना बोलना चाहिए उतना बोल नहीं पाता, जितना बोलना चाहिए उतना बोल नहीं पाता है। पेशेंट ऑल्सो हैड गॉट गुड रिपीटिशन स्किल, रिपीटिशन भी अच्छे से करता है, बट जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहा। ही कैन रिपीट अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फ्रेसेस एफर्टलेसली, बड़ा बड़ा पेजेस को वो रिपीट करके बोल सकता है, बड़ा स्टोरी बताओ उसको रिपीट करके बोलेगा, and without any error. But speech is non-fluent, reduced and fragmentary, echoic and preservative speech. ऐसा ना कि ऐसे बोलेगा कि जीभ में कुछ गम लगा हुआ है, ठीक है, रुक रुक के आपको लगेगा कि एक कब मैंने इससे अच्छा कि हम ही बोल रहे, ऐसा लगता है आपको सुनने वालों को, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, दे हैव डेफिसिट्स इन इनिशिएशन, शुरू करने में प्रॉब्लम है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द कन्वर्सेशन, कोई भी कन्वर्सेशन को शुरू करने में इसको प्रॉब्लम है और उसके बाद उसको मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम है, विच रिजल्टेड इन पुअर स्पीच आउटपुट। इसकी वजह से क्या हुआ, स्पीच आउटपुट कम हो गया। ही टिपिकली प्रोड्यूसेस 2 to 3 वर्ड्स विद लाउडनेस एंड लेटर रिमेन साइलेंट। तो पीपल विल से हिम ए टास्क ओरिएंटेड पर्सन, लोग उसको बोलेंगे ये काम से काम रखने वाला आदमी है यार, ये ज़्यादा बात नहीं करता है, जितना चाहिए उतना ही बोलता है। बताओ ये क्या है?
ब्रोकास अफेक्टेड है इसका, वर्निक्स अफेक्टेड है, आर्कुएट फाइबर्स अफेक्टेड है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि नर्व्स के साथ प्रॉब्लम है, क्रेनियल नर्व्स के साथ प्रॉब्लम है। नहीं, जो बोल रहा है उसको सही बोल रहा है ना वो। अगर नर्व्स के साथ प्रॉब्लम होना चाहिए, नहीं, ओरल कैविटी का जो भी मसल्स है यहाँ पे प्रॉब्लम होना चाहिए, तो बोलने में उसको प्रॉब्लम होना चाहिए। मतलब जो बोल रहा है उसमें या तो स्टटरिंग होना चाहिए या तो गैप्स आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। मतलब वो देखो, एक होता है कि ये जो ओरल कैविटी का जो प्रॉब्लम में या तो वो तुतलाएगा, ठीक है, या तो ड्रैगिंग होगा, मेरा नाम ये होगा, या तो तुतलाएगा मेरा नाम ये बोलेगा, ठीक है, या तो स्टटरिंग मेरा नाम ये होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है तो ओरल कैविटी का प्रॉब्लम है अलॉन्ग विद द सेरेब्रल। बट यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है, ही टिपिकली प्रोड्यूसेस 2 to 3 वर्ड्स विद लाउडनेस, 2 to 3 वर्ड्स विद लाउडनेस। बट इसके साथ दिक्कत है कि he can even repeat the long complex phrases effortlessly and without any error also, but he is non-fluent। वो बोलेगा पूरा, जो पूरा फ्रेज को बोल सकता है वो तो अपना टाइम लेगा, रुक रुक के बोलेगा, नॉट फ्लुएंट नहीं है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल, देन थिंग्स विल बी क्लियर। फ्रैगमेंटरी हो सकता है, ठीक है, मुझे आप बोलना है कि कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके साथ देश के बारे में कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, उससे पूछा गया है कि देश में क्या चल रहा है, तब वो उसको सब पता है, वो तो आपसे बात करना शुरू करेगा, बट उसका तरीका कैसे होगा? हमारा देश बहुत ठीक है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे आप? कहाँ पे प्रॉब्लम है? कहाँ ब्रोकास में प्रॉब्लम? इतना अच्छे से बोल रहे हो, वर्ड्स तो क्लियर था ना एकदम, लाउड भी था। हाँ, फ्लुएंस तो कम, हम पहले बता रहे हैं कि फ्लुएंसी नहीं है इसमें, यही तो है, फ्रैगमेंटेड है, बीच में रुक रुक के, जैसा हमारा वाजपेयी जी बोलते थे, वो रुक रुक के बोल रहा है। हाँ, ये तो बोल रहा है, मीनिंगफुल जो बोल रहा है वो मीनिंगफुल बोल रहा है। तो अब क्या है, नॉर्मल है आपके हिसाब से? तो लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये तो काम से काम रखने वाला, ये फालतू में बोलने वाला नहीं है, ये जितना चाहिए उतना ही बोलेगा, काम से काम रखने। सपोज आप दूसरे एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे बोल रहे कि मेरा नाम ये है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप बोल रहे हो उससे, ठीक है, और जो है मेरा 2 बच्चे हैं, बच्चा इसमें पढ़ रहा है, मेरा एक बीबी है, ये है वो है, तो सब आप बोल रहे हैं कि आप बताइए आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, उसका एक ही आंसर है। आपने बस 10 मिनट बात किया और उसका एक ही शब्द का आंसर है, मैं ठीक हूँ। या ऑफिसर का लेवल में है तो आप जाके बोलेंगे ऑफिसर से कि सर ये होना है सर मेरा ये होता, ऑफिसर बोलेगा काम क्या है बताइए, तो जितना चाहिए उतना ही बोलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट उसका साथ कॉन्वर्सेशन को एक आगे बढ़ाने का जो टेक्निक है ना, वो नहीं है। उसके साथ बैठ के आप है ना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, गप्पा नहीं मार सकते।
Yes, he understands well and speaks also well and repeat the words, and therefore problem is not in the Broca's area, problem is also not in the Wernicke's area, or problem is not even in the pathway. So where is the problem? But damage to the adjacent area of the Broca's area, like superior frontal lobe, which is the cortical control area of Broca's area, the initiation and output of the speech is less. So, however, the complete damage to the superior frontal lobe may totally affect the speech. So, what they are telling is, ये जो वाला area है, this is Broca's area. The adjacent areas of the Broca's area जो ये है, कौन सा superior cortical control है, superior frontal lobe, और यहाँ पे डैमेज है, ठीक है. इसका जो Broca's area में डैमेज नहीं है, उसका जो adjacent एरिया में डैमेज है. सो आपको बताया ना, मैंने पहले भी बताया था कि जो है, जो भी स्पीच Broca's एरिया एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ से उसको सेंसेशन आना चाहिए, है ना. ये जो फाइबर्स है ये यहाँ पे आता है, और उसके बाद Broca's एरिया पूछता है बेसल गैंग्लिया से क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या, ठीक है. अब ये पूछ तो लेता है आगे बढ़ूँ क्या, ये पूछ लेता है, बट जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका आता है, कहाँ से, प्राइमरी मोटर एरिया या आपका सुपीरियर फ्रंटल लोब से जो नर्वस कंट्रोल है या जो स्टिमुलेशन है जो यहाँ तक आता है, ये डैमेज है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, टोटल स्पीच का आउटपुट कम हो गया. वो जो बोल रहा है वो मीनिंगफुल बोल रहा है, टू द पॉइंट बोल रहा है, बट यहाँ से जितना बम्बार्डिंग होना चाहिए था इसका स्टिमुलेशन का, उतना बम्बार्डिंग नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला एरिया मान लो डैमेज है. सो द व्हाट इट रिजल्ट इन डिक्रीज आउटपुट ऑफ द स्पीच. स्पीच का आउटपुट कितना होना है उतना नहीं होगा, ठीक है. हाउएवर द कंप्लीट डैमेज, अगर मान लो वो वाला एरिया कंप्लीटली डैमेज हो गया, देन इट मे अफेक्ट द स्पीच सिग्निफिकेंटली, ठीक है. अब वो एक अलग सिचुएशन है, वो एरिया कंप्लीटली डैमेज हो गया, तो Broca's एरिया भी सही है, आर्कुएट फाइबर्स भी सही है, Wernicke's एरिया भी सही है, उसको पता भी है क्या बोलना है, बट ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है. सुपीरियर से ना जो प्रोग्रामिंग्स आ रहा है ना, जो प्रोग्राम्स जो सेट करके जो आपका प्राइमरी मोटर एरिया या सुपीरियर वो फ्रंटल लोब एरिया वो भेजना है ना, तो वो भेज नहीं है, वो भेज रहा है बट बीच में वहाँ पे रुकावट है, वो नहीं पहुँच रहा है, Broca's एरिया तक नहीं पहुँच रहा है. इसलिए Broca's एरिया को पता नहीं है क्या बोलना है, कुछ कुछ पहुँच रहा है, जो पहुँच रहा है उसका आंसर बोल रहा है, जो पहुँच रहा है ना तो उसके लिए वो रेस्पॉन्ड कर रहा है. इसलिए वो एक कन्वर्सेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, और बाद में यही आदत हो जाता है, वो जितना मैंने लोग यही सोचते हैं कि कम बोलने वाला है, हो सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम. सो दिस में हैपन्स इन द बच्चों में भी ये हो सकता है. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम शुरू से ही रहेगी कि एक पर्टिकुलर एज में आएगी? नहीं, शुरू से भी रह सकता है या कोई डिसीज़ के बाद ये हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, वहाँ का जो डैमेज फाइबर्स है वो जाने वाला वो डैमेज हो गया, देन इट में बी देयर. और सेरेब्रल पाल्सी में हो सकता है, किसी प्रॉब्लम में हो सकता है. नहीं, सेरेबेलम को तो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में उसको फाइनली ट्यूनिंग करता है आर्टिकुलेशन में. तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा ना, ऊपर से जो आ रहा है वो अच्छे से आ रहा है, उसका सेरेबेलम अच्छे से मॉड्यूलेट कर रहा है ना. ऊपर से आने वाला जो इनपुट है ना वही कम है, इनपुट कम है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेसिया. कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है, कॉर्टेक्स से Broca's एरिया को जो आने वाला जो पाथवे है उसमें प्रॉब्लम है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेसिया, नॉट ए सेंसरी एफेसिया, मोटर एफेसिया. बात करने में प्रॉब्लम. दिस लीड्स टू डिसकनेक्शन ऑफ द Broca's एरिया विद द कॉर्टिकल फाइबर्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, Broca's एरिया और कॉर्टिकल फाइबर्स दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, ठीक है. तो ये यहाँ पे जो प्रोग्राम रिलीज कर रहा है वो यहाँ तक आ ही नहीं रहा है, तो इसको रिसीव करके कैसे बात करें. कुछ कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो फाइबर्स बचे हुए उसके थ्रू, तो उसी हिसाब से वो बात करता है, दैट्स ऑल. बाकी सब सही है. सो द मेन प्रॉब्लम विल बी विद द इनिशिएशन ऑफ द स्पीच. सो यू विल हैव प्रॉब्लम इन द इनिशिएशन ऑफ द स्पीच. वॉट एवर ही स्पीक्स ही इज मीनिंगफुल एंड ऑल्सो ही रिपीट इट, कोई दिक्कत नहीं, बट इनिशिएशन में उसको दिक्कत है, क्योंकि वहाँ से जो प्रोग्राम्स है वो आ ही नहीं.
सर उधर दूसरा एक है ट्रांसपोर्टिंग सेंसरी एबिलिटी। हाँ अभी वही आ रहा है नेक्स्ट. Yes, understand this case. 10-year-old boy has normal speech production. Ten-year-old boy has normal speech production. Fluently he talks with the proper articulation. But he can also able to repeat the phrases. But there is loss of comprehension of the objects. Loss of comprehension of the objects. You ask what is your name, and then he replies that what is your name. आप उससे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वैसे ही पूछ रहे हैं. मतलब आप जो बोल रहे हो उसी को रिपीट कर रहे हो. ठीक है. एंड देयर इज अ लैक ऑफ स्कीमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ द स्पीच. Whatever others are saying, patient does not understand. क्या है ये केस? जो पहले वाला जो केस आपने देखा जिसमें मोटर प्रॉब्लम था, जहां से ब्रोकास एरिया जो है बाकी एरिया से डिस्कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे भी सेम हो रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, वर्निक्स एरिया जो है बाकी एरिया से डिस्कनेक्टेड हुआ. वर्निक्स एरिया जो है बाकी जो ये जो वर्निक्स एरिया है ये हुआ आपका टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल कॉर्टेक्स. अब ये वर्निक्स एरिया जो है ये जो अदर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब से डिस्कनेक्टेड है. बिकॉज जैसा यहाँ पे मोटर एरिया से कनेक्टेड है, वैसे ही यहाँ पे आपका वर्निक्स एरिया इज कनेक्टेड विद सो मेनी सेंसरी कॉर्टेक्स. यहाँ पे ब्रोकास एरिया मोटर कॉर्टेक्स से कनेक्टेड था. ठीक है. और टेम्पोरल लोब में जो है वर्निक्स एरिया इज कनेक्टेड विद सेंसरी कॉर्टेक्स. और समझ में देखो, एक होता है मोटर कॉर्टेक्स, एक होता है सेंसरी कॉर्टेक्स पूरा ब्रेन में. ये टोटल हमारा सेरेबेलम है. ठीक है. ये फ्रंटल लोब है या पैरेटल लोब है, यहाँ पे सब मोटर कॉर्टेक्स ज़्यादा है. आपको ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में आएंगे, यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स ज़्यादा है. मतलब आप जो भी बोलते हो जो भी करते हो वो सब इसके थ्रू ही जाता है. ब्रेन में दो पार्ट होता है ना, एक सेंसरी पार्ट है, एक मोटर पार्ट है. मोटर पार्ट कभी तभी काम करेगा जब सेंसेशन आएगा. ये जो भी सेंसेशन आएगा उसको रिसीव करने वाला काम मैक्सिममली होता है सेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब. इसलिए वर्निक्स एरिया वो सेंसरी एरिया है, वो टेम्पोरल लोब में है. ठीक है. मेमोरी, उसके बाद स्पीच, लैंग्वेज, तो ये सब यहीं से मेंटेन होता है. तो नाउ द प्रॉब्लम इज हियर. यहाँ पे प्रॉब्लम है. दिस आपका वर्निक्स एरिया इज डिस्कनेक्टेड विद द सेंसरी कॉर्टेक्स. अब बताओ क्या है. अब वापस केस को देखो. 10-year-old बॉय इज नॉर्मल स्पीच है, उसका स्पीच बोलने का उसका तरीका सही है, इसका मतलब ब्रोकास एरिया सही है, प्रोडक्शन फ्लुएंटली एंड विद द प्रॉपर आर्टिकुलेशन, सेरेबेलम सही है, मिड ब्रेन सही है. ही कैन ऑल्सो एबल टू रिपीट द फ्रेसेस, आर्कुएट फाइबर सही है. बट देर इज अ लॉस ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कॉम्प्रहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग. वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी समझना किसका काम है? वर्निक्स का है. वर्निक्स जो समझता है उसके लिए, उस वर्निक्स के लिए फीडबैक कहाँ से आता है? सेंसरी कॉर्टेक्स से आता है. जैसा वहाँ पे ब्रोकास एरिया के लिए मोटर फीडिंग ऊपर से आया था, और यहाँ से सेंसरी उसके फीडिंग सेंसरी कॉर्टेक्स से आएगा. सराउंडिंग सेंसरी कॉर्टेक्स अफेक्टेड है. ओके. सो क्या होगा कि वो जो बोलता सही है वो अलग बात है, बट जो समझता वो गलत है. व्हेन यू आस्क व्हाट इज़ योर नेम, उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या पूछा गया मेरे से, क्या पूछा गया समझ में नहीं आता है. तो वो क्या बोलता है? वापस उसी को रिपीट करता है, व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है. आर्कुएट फाइबर्स उसका सही है, इसलिए रिपीटिशन तो करेगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है. सो देयर इज अ लैक ऑफ
schematic processing of the speech. Whatever others are saying, patient is not able to understand. Yes, when it occurs, this occurs when there is a damage to the specific areas of the temporal lobe of the brain, okay, which connects the temporal lobe with the vernix area, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं. अगर किसी की कारण से टेम्परल लोब से जो है, टेम्परल लोब में डैमेज है, जो फाइबर से टेम्परल लोब को वर्निक्स एरिया से कनेक्ट करता है, अगर वो प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, सो देन दिस लीड्स टू दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वर्निक्स एफेसिया. ये ऑलमोस्ट ऑल इक्वल टू वर्निक्स एफेसिया. वर्निक्स एफेसिया और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, वर्निक्स एफेसिया में रिपीटिशन भी नहीं होता है, बट यहाँ पे रिपीटिशन है. ठीक है. सो एक्सेप्शन दैट ही कैन रिपीट द वर्ड और फ्रेसेस. पर्सन कैन रिपीट द क्वेश्चंस rather than the answer. So if you ask what is your name, then he replies, what is your name? छोटा बच्चे यूजुअली करते हैं, आप देखे होंगे. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ऐसे पूछते हैं. मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? ऐसे वापस बोलते हैं आप, क्योंकि वो न्यूबॉर्न में जो है, मतलब इन्फेंटल पीरियड में ये वाला टेम्पोरल लोब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है. पता है ना आपको, टेम्पोरल लोब इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रियलिटी एंड अनरियलिटी. छोटा बच्चों में टेम्पोरल लोब बहुत इमेच्योर रहता है. रियलिटी और अनरियलिटी को जो आपको बताता है वो भी टेम्पोरल लोब बताता है. कौन सा इमेजिनरी है, कौन सा रियल है, ये भी किसका काम है समझना? टेम्पोरल लोब का काम है. बट बच्चों में जो है टेम्पोरल लोब बहुत वीक रहता है. वीक मतलब इमेच्योर रहता है. इसलिए बच्चों को क्या है कि इमेजिनरी चीज़ें अच्छा लगता है, रियल चीज़ अच्छा नहीं लगता. आप स्टोरी बोलेंगे ना कि अब्दुल कलाम का, अब्दुल कलाम ऐसे थे ऐसे थे, अच्छा नहीं लगता. उसको एक इमेजिनरी स्टोरी बोलो. एक राजा था, राजा उड़ रहा था, तो वहाँ से कोई पकड़ रहे थे, ऐसे देखते रहेंगे, क्योंकि ही विल नॉट एंजॉय द रियल थिंग्स, ही विल एंजॉय द नॉन रियल थिंग्स. हाँ, कौन नहीं, उसका वो कैपेसिटी नहीं है ना, मेच्योरिटी नहीं हुआ है वहाँ पे. जैसे अभी हम एग्जांपल दिया अब्दुल कलाम जी की बात को, और जो फेरी टेल्स है इनको कैसे डिफरेंशिएट करता है? फेरी टेल्स को लाइक कर रहा है और ड्रीम्स को लाइक कर रहा है. मैं बता रहा हूँ, जैसा जैसा टेम्पोरल लोब मेच्योर होता जाएगा, तो वो कौन सा चीज़ रियल है, कौन सा चीज़ अनरियल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा. जब उसका मेच्योरिटी नहीं है तो ही ओनली थिंक्स एवरीथिंग इज इमेजिनरी, और उसी में उसको मज़ा आएगा. उसको समझ में आता है नहीं अलग बात है, वो उसको मज़ा आता है उसमें, क्योंकि उसको इमेजिनरी चीज़ें ही चाहिए. टेम्पोरल लोब मेंटेन माने मेच्योर नहीं हुआ है. ओके, सो दिस इज ए केस ऑफ ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेसिया. जैसा हमने लास्ट में देखा ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेसिया, एंड दिस इज ए केस ऑफ ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेसिया. So in this case, directly vernix area is not affected, but the connection with the temporal lobe cortex, which helps in the processing the visual and auditory stimulus to get the meaning or to understand, is get disturbed. समझ में आ गया? टेम्पोरल लोब में मेमोरी का पार्ट भी है, मेमोरी भी टेम्पोरल लोब में है. अब वो कॉर्टिकल फाइबर्स वहाँ पे नहीं रहा तो मेमोरी भी नहीं रहा, मेमोरी से भी डिस्कनेक्टेड रहा वो. ठीक है, इसलिए बोलते हैं वर्निक्स एरिया को हम मेंटल डिक्शनरी है. यस, व्हाट अबाउट दिस केस?
patient with the severe problems in speaking and comprehension with intact repetition. They cannot name the objects. Non-fluent in talking. Do not speak unless they spoken to. जब तक उससे बात नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं करेंगे उससे. They cannot read and write. अब कहाँ पे है प्रॉब्लम? सोचो सोचो, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं. क्या हो सकता है? स्पीकिंग में उसको प्रॉब्लम है, कॉम्प्रहेंशन में भी प्रॉब्लम बता रहा है, बट वो रिपीटिशन सही है उसका, ठीक है. नेमिंग नहीं कर सकते कोई ऑब्जेक्ट को. जो टॉकिंग जो कर रहे हैं वो बात तो कर रहे हैं बट वो फ्लुएंट नहीं है, नॉन फ्लुएंट है. वैसी बात नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेस देना पड़ेगा. डू नॉट स्पीक अनलेस दे स्पोकन टू. व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, दिस इज द एग्जाम्पल इफ यू वांट. एक लाइव एग्जाम्पल है. डॉक्टर और उसका बीच में एक ये चल रहा है. डॉक्टर पूछ रहा है उससे, हेलो डियर बॉय, हाउ आर यू? बच्चा बोलेगा हेलो बॉय, यस. डॉक्टर पूछ रहा है हाउ आर यू डूइंग टुडे? वो भी बोल रहा है कि हाउ आर यू डूइंग टुडे? डॉक्टर, आई एम वेरी फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? तो ये बोल रहा है आई एम फाइन थैंक यू. डॉक्टर, माई नेम इज़ गोपाल, आई विल प्ले विद यू टुडे. बच्चा बोल रहा है माई नेम इज़ गोपाल, आई एम प्लेइंग यू टुडे. क्या हो रहा है? They can repeat like parrot like lesson. बोलते ना तोता, तोता को जो आप बोलेंगे वही उसको रिपीट करेगा, उसी को ना जो सिखाएंगे. तो यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है? Yes. In this condition, the two vital area of the speech like Broca's and Wernicke's area are totally disconnected from the cerebral areas with the intact arcuate fasciculus. Therefore, it is also called as isolated aphasia. क्या हो रहा है यहाँ पे? टू वाइटल एरियाज ऑफ द स्पीच. कौन सा? ब्रोकास और वर्निक्स. वो दोनों जो है अपना सेरेब्रल एरिया से डिस्कनेक्टेड है. उधर ब्रोकास एरिया भी वहाँ से डिस्कनेक्टेड है, इधर जो है वर्निक्स एरिया भी सेंसरी से डिस्कनेक्टेड है. अब इसमें सही क्या है? आर्केड फाइबर एक सही है बीच में, है ना, वो बीच में वो रह गया. तो अब क्या हुआ कि वो भी आइसोलेट हो गया, ये भी आइसोलेट हो गया. सो दिस टाइप ऑफ एफेसिया इज कॉल्ड एज ट्रांसकॉर्टिकल मिक्स्ड टाइप ऑफ एफेसिया. वेरी सिंपल. हम बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहे. पहले तो हमने पूछा ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेसिया, उसके बाद हमने देखा ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेसिया. अब इसमें क्या है? सेंसरी भी गया, मोटर भी गया. सेंसरी भी गया और मोटर भी गया, इसलिए पेशेंट इस तरीके से बात कर रहे हैं. क्यों? हेलो डियर बॉय, हाउ आर यू? वो क्या बोल रहा है? हेलो बॉय. ये क्या है? रिपीटिशन है. इस पूरा कॉन्वर्सेशन में एक ही चीज़ है, वो रिपीटिशन हो रहा है, ना कि वो कुछ समझ रहा है ये क्या बोल रहा है, ना कुछ वो खुद बोलने का कोई कोशिश कर रहा है. ही इज़ ओनली रिपीटिंग. वाई ही इज़ रिपीटिंग? बिकॉज उसमें सही तो एक ही है, आर्केड फाइबर ही एक सही है, बाकी सब तो डिस्कनेक्टेड है. ब्रोकास एरिया सेरेब्रम से, मोटर सेरेब्रम से डिस्कनेक्टेड है, वर्निक्स एरिया सेंसरी से डिस्कनेक्टेड है. तो वो क्या कर सकता है? उसको आर्क्यूटिक सही है, इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं. व्हाट द पॉइंट?
दिस इज कॉल्ड मिक्स टाइप ऑफ अफेसिया. अब ये क्या है? पेशेंट हैज गॉट इंटैक्ट स्पीच एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच. When he is asked what is this by showing a pen, he says it is rose. पेन दिखा रहा है, वो बोल रहा है ये गुलाब है. And when you ask what is the use, he says it is used for writing. उसको पेन दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि ये एक गुलाब है. बाद में आपने पूछा इसका यूज़ क्या है, तो बोल रहा है ये लिखने में यूज़ आता है. Similarly, when he is talking, he will have the deficit of certain words like name of his friends, name of the school, etc. Otherwise, patient is absolutely fine. समझ में आ गया? मतलब वो बोल रहा है पेन को बोल रहा है गुलाब, बट पेन से क्या लिखते हैं वो उसको पता है. पेन किस काम में आता है वो पता है. समझ रहा है लेकिन वो बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं. हाँ, समझ रहा है कि क्या चीज़ है लेकिन वो सही वर्ड यूज़ नहीं कर रहा उसको. वही तो है. क्यों हो रहा है ये? और कुछ नाम वगैरह याद करने में उसको बहुत प्रॉब्लम है. मेरा स्कूल का नाम क्या है, मेरा दोस्त का नाम क्या है, मेरा फादर का नाम क्या है, वो सब उसको याद नहीं रहता. बाकी तो वो स्पीच फ्लुएंटली बोल देते हैं. क्यों, क्या हो सकता है कारण? हाँ, कोई आइडिया? Okay, individual will have the words retrieval problems and cannot express the words what he want to say, particularly nouns and verbs. So this is a problem with the expressive language. So they can use the hand gesture to demonstrate how the objects are used, but he cannot find the appropriate word to name the object. ठीक है, जैसे क्या है कि उसका दोस्त का नाम है, उसका दोस्त बहुत मोटा है, ठीक है, उसका नाम उसको याद नहीं आ रहा है. वो है ना, वो ऐसे बोलेगा, हैंड गेस्चर तो यूज़ करेगा वो, बट उसका नाम वो याद नहीं आ रहा है. ठीक है, नाउन्स होगा, वर्ब्स होगा, वो उसको याद नहीं आ रहा है. हैंड गेस्चर से वो एक्सप्रेस करेगा. सिमिलरली पेन को देखने के बाद उसको पेन बोल के याद नहीं आया, वो उसके बदले में रोज बोल दिया उसको, बट पेन से क्या करते उसको पता है. So what is this problem? Okay, so this problem occur when there is a most posterior most part of the vernix area is affected, which is related with the objects affected. जो vernix area है, इसका जो posterior most area है, okay, so this area is related with the naming of the objects. Objects को name करने के लिए vernix area का ये वाला, that means हाँ मेरा नाम श्रीनिधि है, आपको जब पता चलेगा ना तो वो वहाँ पे आपका वर्निक्स एरिया का पोस्टीरियर मोस्ट एरिया में ये होता है. ये का वर्ब को याद रखना या नाउन को याद रखना, ठीक है, कोई राजा का नाम को याद रखना, कोई कंट्री का नाम को याद रखना, जो नाउन्स है वो सब एक्चुअली इसका जो मेंटल डिक्शनरी है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में. ठीक है, सो व्हेन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्निक्स एरिया इज गेट अफेक्टेड, देन ही इज टिपिकली हैविंग प्रॉब्लम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द नाउन्स. ठीक है, तो वो यहाँ पे हो रहा है. सो यहाँ पे क्या बोला था उसको, इसलिए वो पेन को जो एलिफेंट बोल रहा है, बट वो पेन से क्या करते हैं उसको पता है, क्योंकि उसे जो करते हैं ना वो तो कोई नाउन नहीं है, उसका फंक्शन क्या है वो उसको पता है, बट वो याद नहीं होता उसको. ये थोड़ा बहुत ओल्ड होने के बाद यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है.
60 साल के बाद। वो हमारा भतीजा का बेटा है ना, क्या है नाम उसका, मोटा सा लड़का है, पतला लंबा सा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो नाम याद नहीं आता। कुछ भी करो 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक नाम तो याद नहीं आता, बाकी सब एक्सप्लेनेशन दे दिया, वो ऐसा है ये सब बोल दिया। यस, व्हाट इज दिस केस? तो ये केस क्या है, पढ़ो इसको। Patient is not able to speak and not able to think and also comprehend and also not able to repeat the phrases. He is unable to understand and spelling mistake हुआ है, and he cannot create and repeat the words, and there will be difficulties in reading and writing also. However, he can use some of the facial expressions. कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाता है, बाकी कुछ में नहीं है इसका। क्या है ये प्रॉब्लम? समझ भी नहीं रहा है, वो बोल भी नहीं रहा है, रिपीटिशन भी नहीं है। So in this case, there will be damage to the vernix area which interferes with the comprehension, which is needed for the both written and verbal language, and also the Broca's area which interferes with the speech activity, and also involvement of the arcuate fibers, resulting in loss of repetition. So this conclusion is, this is called as global aphasia. सब कुछ चला गया यहाँ पे। तो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, ट्रांसकॉर्टिकल मोटरी, ट्रांसकॉर्टिकल मिक्सड, आइसोलेटेड, और उसके बाद ये ग्लोबल एफेसिया। Okay, what is this case? Patient will have some difficulty in speech production and also having the weakness of the lower face and weakness of the upper limbs, and there is also change in one and posture of the patient. One नहीं होगा, there is also change in the tone and posture of the patient. Tone. Patient will have some difficulty in speech production and also having the weakness of the lower face, weakness of the upper limbs, and there is also change in the tone and as well as posture of the patient. अब पेशेंट को स्पीच का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, उससे भी ज़्यादा बाकी प्रॉब्लम है, फेशियल प्रॉब्लम है, उसका लिम्ब थोड़ा वीक है, बैठता तो ऐसा बैठता है। यस, कॉमन सेंस है। हाँ, लीजन कहाँ पे हो सकता है इसमें? मिड ब्रेन में भी, मिड ब्रेन से जितना भी क्रेनियल नर्व्स निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल एसेसरी नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाइज टू दी शोल्डर, डेल्टॉइड को सप्लाई करता है, ट्रेपीजियस को सप्लाई करता है,
फेशियल मसल का वीकनेस बता रहा है, लोअर फेस में फेशियल नर्व सप्लाई करता है, वो भी मिड ब्रेन से निकलता है. सो मे बी सम प्रॉब्लम रिलेटेड लाइक दैट, देखेंगे. यस, व्हाट इज दिस? Some people will have the problem with the basal ganglia as it occurs in case of Parkinsonism, and there will be involvement of the putamen and quadrate nucleus. Both these are connected with the motor activity and speech. The anterior part of the basal ganglia is affected, then almost all similar to the Broca's problem, but still we can differentiate it from the Broca's problem. In true Broca's problem, along with the motor aphasia of usually associated with the motor problems like contralateral lower face hemiparesis with the contralateral upper limb weakness, as damage to the Broca's area may also cause damage to the surrounding motor pathway also. But when the motor aphasia is due to, ये चार्ज नहीं होता है क्या? ऑन नहीं किया, ये चार्ज नहीं होता इसमें. चलो इसको कल, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कल करेंगे. कितना केस समझ में आ गया? एक और क्लास है और 10 केस है इसमें. वो जब 10 केस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल क्लियर हो जाएगा. ये सब ऑलमोस्ट ऑल थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, बट ये सिस्टमेटिकली हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है. तो और भी 10-12 केस है इसमें. जब 10-12 केस और देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. एक और क्लास चाहिए शायद शुक्रवार को. कल तो आप लोगों का कुछ ट्रेनिंग है, बट ये लोग रहेंगे, दूसरे लोग तो रहेंगे, ठीक है. नहीं तो शनिवार को देखेंगे जो करना. अच्छा, सो इसके बाद जो है थोड़ा केस है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाता है. अभी तक हमने जो देखा बहुत सिंपल केस है, ठीक है, बेसिक्स है, इसमें ज़्यादा ये नहीं है. इसके बाद वाला केस में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है. अभी 10-12 केस है इसमें, इसको हम आगे करेंगे. इतना तो क्लियर है.